दिख रहा है क्या लिखा है? हाँ, शुरू करूं? तो उन लोगों को आगे बुला लेते हैं। चलिए ठीक है। आप लोग अगर इधर नज़दीक आएंगे तो मैं बोर्ड पे आज लिखूंगा तो बोर्ड दिख पाएगा आप लोगों को। और चाहूँगा कि आप लोगों को अभी आज संख्या ज़्यादा नहीं रहेगा। इतना आनंददायक मौसम है, मानसून का लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये प्री मानसून सेशन है। पीछे नहीं जाएंगे आप लोग, पीछे फिर वो दिखाई नहीं देगा आपको। लाइट नहीं है, आगे बैठ जाओ बेटे, इधर भी स्पेस है। यस विक्रांत, शुरू करें? तुम थम्स अप बोलोगे तब करेंगे। हाँ, वो तो अभी आते रहेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। So it's in nice weather. We will manage working capital, but before going to working capital management, I'll again, as usual, brief you related to what we discussed in previous 2-3 sessions, and after that I'll come to working capital management. A complete set wise we had discussed. First set was related to concept of financial management, where mathematical component of financial management was time value of money. Second component was return and risk. Return and risk we managed. We learnt about that. Then we started taking decision, and investment decisions were there, in which capital budgeting was very important component. And in capital budgeting, when we were taking decision, discounting was of concern, and for that discounting rate was also a concern. And in that discounting rate, we used weighted average cost of capital, and for that we learned how to calculate cost of capital and weighted average cost of capital. When we started learning calculation of cost of capital, then capital structure became one of the prominent factor which was influencing cost of capital. Otherwise, capital structure was influencing cost of capital, and cost of capital was trying to influence the capital structure. So it was a kind of a bidirectional influence. Two-way causality had been there. Two-way causality means A causes B, B causes A. That is two-way causality. Once we understood that since two-way causality is there, then a factor became important, how to decide how much is going to be the debt and equity component. And for that determination, we went for another one important segment of understanding or concept, and that was called leverage. Leveraging we understood. In the leveraging, it was said that if debt and equity we take, increasing debt will reduce the cost because debt is cheaper than equity, and that may give a temptation to so many
that keep on increasing the debt to the extent possible. But debt incorporation, debt inclusion leads to financial risk. More leverage, more risk. So there has to be a cap, especially to the lender. And that's why there has been a certain regulatory instructions that how much debt ought to be allowed, which is basically defined as debt equity ratio for a various sectors, how much debt equity has to be put. So debt equity ratio is a guiding force for capital structure. Still that struggle is going to be there. Sometime more and more debt is expected, or people plan to have more and more debt. Sometime no debt is also there. In the last session, we had already seen some of the real capital structure. I asked you to go to the capital structure of various companies which you feel that you know them, and look into that how much capital structure is there, how much debt and equity component is there. And you found that from a basic closer to no debt to a very heavy debt, all kind of a structure has been there. So in a single statement, one can't say that what is going to be the debt component, how much debt is too much debt, or how much debt is good. It is exactly the risk appetite. It is exactly the ability to handle the debt or the potential to earn that is there. Based on that, our chapter which we discussed in the previous session was capital structure, where capital structure is a very common factor. Whatever the various sources of fund is there, those sources of fund is going to get utilized to decide that what is going to be capital structure. But how to decide, or what are the various theories or experts' opinion is lying on that, that we discussed in our subject in our previous class, where we discussed about net income approach, net operating income approach, traditional approach, and Miller and Modigliani approach. These were very important. From examination point of view, one theory question or one numerical question, either of the two, or a combination will come. One question from capital structure, it will be there. This is what we have already discussed. And these discussions are not mere discussions. These discussions completes our 3 units. First, second, and third unit. Out of 5, 3 is complete. Now next is 4th unit, which is actually distribution function of the financial manager, called dividend distribution. Should it be there or not? A chapter called dividend policy, dividend theory, that is there, and that will be discussed in coming 2 sessions, which I have requested someone else to do that. But unit 5, again the working capital management or short-term fund management is our agenda. So I am starting unit 5, jumping unit 4. Independent chapters are there at this stage, so there is no problem associated to it. Though in one session it will not get complete, but then I will be taking your session again in 3rd week of July, not prior to that. Now how it is working, understand, very important. One session I will give you back to capital structure again in say July last week. That will be on numerical aspect of capital structure, how various numerical you can solve. And I expect from you, in the meantime, you will go through your SLM, follow some of the good textbook, and those textbook like of I.M. Pandey or
Dr. Prasanna Chandra or anyone's textbook, go through with practice questions. 80% of your examination will be numerical based. 80%. Maybe just one question can be put for change of test, theory question. Otherwise, every chapter is numerical in nature. Numerical question will be there. In my opinion, it is a very easy subject. One can understand because it is daily routine. You have to associate yourself with that. In working capital management, also we are going to discuss same way what this working capital is and how working capital will be working. So first we will discuss about basic theory, and after that we will talk about numerical associated to it. Assume that you are running a business, and for running the business you require some fund. See, fund is required for two things: for establishing the business, called capacity formation, you have to develop a capacity, called investment, which we have taken decision in capital busting, how much had to be put with. And second one is like if I have to have a manufacturing unit, so a factory has to be established, and after that establishing the factory, I have to run the factory. So up to establishment, up to a start of operation, it is investment. But once investment has been made, factory is on, machine is installed, you run machine, you require raw material, you require labor, you require so many facilities, other fuels and everything to produce. And once you require all these things, these require on a regular basis, on repeat basis. And that repetition is very, very important. Again, if we go back to the basic concept, what could be the prime objective of any business? There should not be hesitation in speaking. If we talk about prime objective of a business, what could be that? Maybe if I say just you speak on only one objective, can we call it profit maximization? And in corporate world, there is no problem into calling profit maximization. Profit is needed. Profit is required. So profit maximization is to be there. You should maximize profit. And for profit maximization, what is required to be done? How profit could be maximized? Increasing sales, very good. Increase the sales. What else? Decreasing the cost. Nice. So you can increase your sales, you can decrease your cost. Increasing sales, is it possible to, make increase of the sales on your own? Is it that much easy? Yes or no? No. It is depending on number of factors and even market condition, customer demand, competition in the market. Yes or not? Quality of your production in the market. Every factor is going to decide about it. But still we should not miss that. We should keep on looking for how sales could increase. Survival of the fittest will be there when you have the sufficient revenue generation. Right? So what is the next one? Cost reduction. So we have to understand now this is not a cost of establishment. This is the running cost, production cost, service cost. These are the costs which we have to cover up. So what are those costs? How it has to be decided? And our objective is to reduce the cost. This is the way we have to decide. Any disagreement on this factor? Any one of you feel that, no, sir, I have not studied these things. Is it really required a study for it? कि हमें प्रोडक्शन करना है तो कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, तभी कॉम्पिटिटिवनेस होगा.
अगर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे, जितना रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का गैप बढ़ेगा उतना मेरे लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जितना रेवेन्यू और कॉस्ट नजदीक आएगा उतना मेरा सफोकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और गलती से अगर कहीं रेवेन्यू को टच कर गया कॉस्ट तो फिर मेरी सर्वाइवल ही खत्म हो गई। और कॉस्ट अगर क्रॉस करके रेवेन्यू के छत को तोड़ के बाहर निकल गया तो गए। यही है ना। तो इसमें कहीं कोई, मैं क्यों बोला फाइनेंस बहुत आसान है, ये एक बेसिक बिहेवियरल कॉन्सेप्ट है, रिक्वायर्ड है। और इसलिए भी मैं मानता हूं कि फाइनेंस आसान है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेस टाइकून जो पुराने हैं, जो एस्टैब्लिश्ड हैं, उनको मैं देखा कहीं एमबीए पढ़े नहीं है। दे आर नॉट एमबीए। तो इसका मतलब है कि इसका इसेंस कहीं और लाई कर रहा है, राइट और नॉट। हाउ बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कुड बी देयर, दैट इज लाइंग समवेयर एल्स। सेकेंडली, जो सो कॉल्ड न्यू जनरेशन ज्यादा आए हुए हैं, बड़े बड़े जगह से डिग्री लेके, वो बिजनेस को ज्यादा फेल कर रहे हैं। फेल्योर रेट among these young one is more compared to older established businesses. ओल्डर हर तरह के एडवर्स टाइड को क्रॉस कर रहा है। और मैं रिपीटेडली इस बात को कोट भी करता हूं, इट इज नॉट नेसेसरली इन द टेक्स्ट बुक। बात 30 साल पुरानी हो गई। 91 में ही जब एक बार रतन टाटा जी का इंटरव्यू हो रहा था, और उनके इंटरव्यू में पूछा गया कि साहब अब तो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, लिबरलाइजेशन हो गया है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, पूरी की पूरी इकोनॉमी ओपन हो गई, अब आप कैसे आप इसको देखते हैं? आपके लिए चैलेंज बहुत बढ़ेगा, फॉरेनर्स बहुत अंदर आएंगे। आप समझ सकते हैं कि 91 से पहले एक प्रोटेक्टेड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी में आप खेल रहे हो, और सडनली इकोनॉमी ओपन हो रही है, और ओपन हो रही है एक स्ट्रोक में ओपन हो रही है, सारे दरवाजा एक साथ आप खोल रहे हो, बड़े बड़े जाइंट अंदर आएंगे, आपका कंपटीशन होगा, कैसे सरवाइव करेंगे? एंड ही हैड गॉट अ वेरी स्मूथ एंड स्वीट रिप्लाई फॉर इट, एंड रिप्लाई वाज देयर दैट वी हैड सीन ब्रिटिशर्स पीरियड, वी वर देयर when there was a first world war, we were there when there was a second world war, we were there where country got independence, we were there where there were emergency imposed, even today's date 25th June, is it not? सारा सब कुछ था। We will see even this globalization, and 31 year back stated, we know Tata has become more stronger compared to at that point of time, yes or not? Why it is so? So अगर एक सिंपल बेसिक जो आपको आगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्वेश्चन आएगा, what is the expertise of Tata? That's very important. What is the core competency of Tata? Generally in the business environment we talk about core competency. What is the core competency of Tata? क्या आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर के साइड से और कार मेकिंग दोनों सेम टेक्नोलॉजी है? टीसीएस और टाटा मोटर दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक्सपर्टीज हैं, यस और नॉट? टाटा स्टील भी पीछे नहीं है, अपने से बड़े को इनगल्फ करके बैठा है। आप ब्रांड ले लो, आप उसका पूरा का पूरा एरिया ले लो, तो एक क्वेश्चन तो बनता है, और वो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एक्सपर्टीज ऑफ इट? Actual business is not function of what you do, business is function of how you do. Are you getting me? And that learning is required here. Even एक और स्टेटमेंट मैं यहाँ कोट करता हूँ, शिव खेड़ा, आप जानते हैं, एक वन ऑफ द ऑथर हैं, मोटिवेटर हैं, है ना? उनका स्टेटमेंट क्या है? बिग पीपल और ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग, they do things differently. Our working capital management is how much
best differently we can manage. Maybe going beyond what the book suggests. So one by one, factors we will understand, and we will try to make it in a very easy, smooth way how best working capital could be met. Am I clear? तो अब एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं है, कंपनी बन चुकी, प्रोडक्शन यूनिट तैयार है, प्रोडक्शन स्टार्ट है, अब आपके रन की बात है. हाउ टू रन इट बेटर, हाउ टू मेक इट कन्वीनियंट, so that cost should be minimum. Our objective to look into that cost should be minimum. So one of the important factor of the cost is locking of the fund. Fund is locked, cost is going to be high. Is it clear? जितना फंड लॉक होगा, जितनी देर तक लॉक रहेगा, उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ता रहेगा. Is it clear? तो सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है कि कितना जल्दी मेरा फंड रिकवर होता चला जाए. अगर मेरी फंड की रिकवरी फास्टर हो जाए, मेरा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा. बिजनेस कुछ भी हो, बिजनेस कोई भी हो, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए? मेरा कॉस्ट तब रिड्यूस होगा जब मेरा फंड का लॉक इन पीरियड रिड्यूस होगा. अब फंड का कॉस्ट कैसे रिड्यूस करना है? तो फंड को छोड़ दीजिए, लॉक इन पीरियड को रिड्यूस कीजिए, बिकॉज इट इज ऑन फंक्शन ऑफ लॉक इन पीरियड. अब लॉक इन कहां कहां होता है पहले ये देख लें, और क्यों लॉक इन होता है, वाई देयर इज अ लॉक इन रिक्वायर्ड. लॉक इन मीन्स आपका पैसा फंसा हुआ है. इज इट क्लियर? Or what could be the real crux of it, what could be the real tool of it which you can reduce, how you can reduce, that is important. तो उसके कंपोनेंट चेक करते हैं. कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, लेट्स सिंपल प्रोडक्शन यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कल्पना करें. बेस्ट एग्जांपल उसका है. वी कैन फर्दर टॉक ऑन सर्विस सेक्टर्स ऑल्सो, वी कैन टॉक एनी सेक्टर फॉर दैट पर्पस. लेट मी नो हाउ इट इज गोइंग टू गेट डिसाइडेड. सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं? पार्टिसिपेट इनटू इट. सबसे पहले कुछ भी करने के लिए रॉ मटेरियल परचेज करते हैं. तो अगर आप देखिएगा, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? रॉ मटेरियल है. यस और नॉट? रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी रॉ मटेरियल है, जिसका भी रॉ मटेरियल है. आप पेंट इंडस्ट्री में हो तो अलग रॉ मटेरियल होगा, स्टील इंडस्ट्री में हो तो अलग रॉ मटेरियल होगा. राइट? ये रॉ मटेरियल से आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, और तब आपका वर्क इन प्रोग्रेस होता है, WIP हो जाता है, जिसमें आप सर्विस को भी ऐड करते हैं, अदर फैसिलिटीज को भी ऐड करते हैं, चाहे वो फ्यूल हो, अदर इंग्रेडिएंट्स हो, आप ऐड करते चले जाते हैं. तो रॉ मटेरियल का जो कंपोनेंट है, रॉ मटेरियल कंपोनेंट में आप उसको आगे प्रोग्रेस करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस हो जाता है, WIP होता है. और WIP क्या करेगा? फाइनली फिनिश्ड गुड्स बनाता है, FG, फिनिश्ड गुड्स हो गया. व्हाट इज फिनिश्ड गुड्स? रेडी फॉर शिपमेंट. राइट? कस्टमर को देने के लिए आप तैयार हैं, ये पैक्ड हो गया, डिलीवरी के लिए अवेलेबल है, फिनिश्ड गुड्स हो गया. अब ये क्या हो गया? ये चला गया कस्टमर के पास. कस्टमर के पास गया, तो अब आप कस्टमर के पास, मतलब ये सेल्स हो गया, सेल्स है. अब सेल्स के बाद क्या होता है? आपका रियलाइजेशन है, कैश है, और कैश क्या करेंगे? आप सबको पेमेंट करेंगे, जितने फैक्टर हैं सबको पे करेंगे.
एम आई क्लियर? और देखिएगा एक साइकिल बन गया, और इसी साइकिल का नाम है ऑपरेटिंग साइकिल, ओसी। दिस इज ओसी और वर्किंग कैपिटल साइकिल। आपका कैश लग रहा है, कैश जनरेट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। अब इस ऑपरेटिंग साइकिल में क्या करना है? अगर आपको जब पेमेंट करना है, एक एक करके फैक्टर देखते हैं। यू प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल, and after procurement of raw material, when you make payment, they must have given you some time. It could be as short as no time, cash on delivery. भाई मैं आपको क्रेडिट पे नहीं बेचता, हो सकता है ऐसा, रॉ मटेरियल उठाए और रॉ मटेरियल का इमीडिएटली पेमेंट कीजिए। क्लियर? दूसरा टेक्निक क्या हो सकता है? इस पे थोड़ा क्रेडिट मिलेगा आपको। आपका सप्लायर आपको कोई मोहलत दे देता है, दैट मे बी 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 5 वीक्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, डिपेंड करता है। और जितना उसको मोहलत देगा वो आपको उतना उसका कॉस्ट बढ़ेगा, उसका फंड लॉक करेगा, वो भी तो बिजनेसमैन है। लेकिन अभी फिलहाल मैं दूसरे की नहीं, अपनी बात कर रहा हूं। मेरे बिजनेस को कितना फायदा मिल सकता है, कितना ज्यादा पेमेंट टर्म लॉन्गर हो सकता है, वो मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। तो अब क्वेश्चन क्या उठता है कि अगर आपको पेमेंट करना है, सपोज कीजिए रॉ मटेरियल वाले ने आपको 1 मंथ का क्रेडिट दिया है। रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रॉ मटेरियल has given you 1 month credit, supplier has given you 1 month credit, but you are able to, this entire cycle is going to take 3 months of time or more than that. I'm just assuming 3 months of time entire cycle is going to take, means you have to make a payment in 1 month of time, whereas you will receive your payment in 3 months of time. 3 महीने में आपका पैसा आपके पास आएगा। अभी मैं डिफॉल्ट की बात नहीं सोच रहा, बैड डेट की बात नहीं सोच रहा। ऑल क्रेडिट बिजनेस एंड हेल्दी क्रेडिट बिजनेस इज देयर। क्वेश्चन उठता है आप 1 महीने में पेमेंट कैसे कर पाएंगे अगर आपका पैसा 3 महीने में आएगा तो। और एक पहला लीकेज स्टार्ट होता है और बड़े शान से हम लीकेज के साथ बात करते हैं, बिना समझे कि फाइनेंशियल फॉल्ट स्टार्ट हो गया है, फाइनेंशियल डिमेरिट स्टार्ट हो गया है, तुरंत लोग कहते हैं हम ओवरड्राफ्ट ले लेंगे, कैश क्रेडिट लेंगे। अकाउंट वालों को मैंने कभी फील करते नहीं देखा कि ओडी या सीसी या शॉर्ट टर्म लोन एक कॉस्ट। वो इतना धड़ल्ले से और शान से बोलते हैं जैसे कटोरा लेके मांगना कोई बुरी बात नहीं है। और यहीं से मैं अकाउंट और फाइनेंस के बीच में एक बड़ा बोले, अभी आप लोगों को फाइनेंस समझने में टाइम लगेगा, अपना पैसा नहीं आ रहा है, जब आपको पेमेंट करना है उसमें पैसा रियलाइज नहीं कर रहे हैं और शान से। और आप लोग अगर जितने अकाउंट पढ़ के आए होंगे सबके ब्रेन में होगा सर क्या बोल रहे हैं, तो ओडी होता है, सीसी होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है। सब क्यों शॉर्ट टर्म लोन लेना? आप अपना बिजनेस, अपने साइकिल को अपने हिसाब से, अपने कंट्रोल से क्यों नहीं चला रहे हो? यही नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यही गैप हो गया। अगर एक अकाउंटेंट चलाएगा वो आराम से धड़ल्ले से अकाउंट में है, फैसिलिटी है, बैंकर देता है, क्या बैंकर मुफ्त में देता है? और अगर मुफ्त में नहीं देता है तो वह कॉस्ट किस हेड में आएगा और क्यों जनरेट हो रहा है यह कॉस्ट? और तब उसके बाद हम कहते हैं कि वी आर नॉट कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल एनवायरमेंट। कैसे हो गए कॉम्पिटिटिव जब फाइनेंस का एफ नहीं आता है? तो अगर वो कॉस्ट आपको परेशान नहीं कर रहा है,
आप धड़ल्ले से आराम से रॉ मटेरियल प्राइस को लिख रहे हो, उसी तरह से ओवरड्राफ्ट को लिख रहे हो, सीसी को लिख रहे हो, और अकाउंट में है कॉन्सेप्ट इसलिए लिख रहे हो। यहीं पे ब्लंडर है, फर्स्ट ब्लंडर यही है। एंड दिस रिक्वायर्स चेंज। दिस इज फ्रॉम फाइनेंशियल एंगल, यू हैव टू मेक योरसेल्फ चेंज्ड। पहले अंदर फील होना चाहिए कि गड़बड़ है। नाउ यू हैव टू स्टार्ट प्रेशराइजिंग। तो क्या चाहते हो आप? अपने आप को इनएफिशिएंट करोगे या अपने आप को इफिशिएंट करोगे या दूसरे को इनएफिशिएंट करोगे? अब दूसरे को इनएफिशिएंट करना और अपने आप को इफिशिएंट करना क्या होता है मैं बताता हूं। अगर मान लो मैं रॉ मटेरियल वाले को कहूं, अच्छा अभी आपको कितने पीरियड के लिए बोरो करना है? 2 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए बोरो करना है। अब जब 2 मंथ्स के लिए बोरो करना है तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा आपको, और अगर एवरेज हम 1% के हिसाब से लेके चले तो 2 महीने का 2% तो इंटरेस्ट लग जाएगा। एक एवरेज लेके चलते हैं, 12% पर एनम के हिसाब से लेके चलते हैं, 1% पर मंथ, 2 मंथ्स के लिए 2% का कॉस्ट लग गया। 2% बैठे बिठाए आपका कॉस्ट लग रहा है जो प्रॉफिट में ऐड हो सकता था। क्लियर? अब क्या करेंगे? अपने आप को तो मैं एफिशिएंट नहीं करूंगा, मैं दूसरे को इनएफिशिएंट करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने सप्लायर को कहूंगा यार 1 महीने में काम नहीं चलेगा, 2 महीने का मुझे क्रेडिट दो। अगर सप्लायर को कंपेल कर दिए, 2 महीने का क्रेडिट ले लिए, और मैं जाइंट हूं, होता है इंडिया में ऐसा नहीं है, बेचारा सप्लायर। इंडिया में इसलिए क्योंकि हो सकता है अगर ये जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, जिस मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, स्टील अथॉरिटी टाइप का। अब सप्लायर तो बोलेगा इससे मेरी रोजी रोटी चल रही है, जो कहेगा आका जैसा आपके आदेश, और 2 महीने के लिए क्रेडिट देगा, लेकिन 2 महीने उसकी हालत खराब हो जाएगी, he will not receive, और वो स्मॉल प्लेयर है। It was checked in 80s and 90s that one big company, when they lost, one big company bankrupt, hundreds of small company become bankrupt and their money got lost. In 94 Supreme Court had to come with a verdict. सारा ये सीए वगैरह के जो फिलॉसफी है ना, और अकाउंट की फिलॉसफी को धता बताते हुए जज को जजमेंट देना पड़ा। और जजमेंट क्या देना पड़ा कि जब हम लोन के, जब कोई कंपनी लिक्विडेट होती है तो उसमें एक सीनियरिटी होती है, हु विल गेट फर्स्ट, और सबसे पहले पैसा किसको मिलता है? जो सिक्योर्ड लोन प्रोवाइडर होता है। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो अपना कब्जा कर लेते हैं कि मेरा पैसा पहले रिकवर हो, और बेचारा मारा कौन जाता था? सप्लायर। इट इज अनसिक्योर्ड लोन, unsecured credit. There is no security associated to it. 1994 Supreme Court verdict came that whatever it is there, it is immaterial. So first of all, supplier will be given payment. You can't simply make it. और ये सारे जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे सबको साइड खड़ा किया, बोला आपकी बात तब होगी जब ये सप्लायर को पेमेंट मिल जाएगा। Are you getting how these your accounting standard and accounting practices and accounting theories and accounting concepts could be not really very effective in a true sense? And what is really required to run a good business, competitive business in global environment, especially when you have the global market and where your price should be international price, and international price should be lower than domestic price. That competitiveness you will be able to get when you are working efficiently. If you are not working efficiently, can't be possible to have it. Am I clear? तो अब आपको सारा वर्क यहां पे करना है कि कैसे इसको करें। इफिशिएंट करने की बात अगर करें तो क्या होगा? ये तो दूसरे को प्रेशराइज कर रहा है। इफिशिएंट करने की बात क्या होगा? ये जो मेरा 3 महीने का साइकिल है, क्या इसको रिड्यूस करके 2 महीने बना सकते हैं? अगर 2 महीने रिड्यूस करके बना दें, 2 मंथ्स के साइकिल बना दें, तो मेरा 1 महीने का पैसा तो सेव होने लगेगा। और अगर इतनी कैपेसिटी हमारी हो जाए, ट्रांसफॉर्म कर लें, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियर कर लें, बीपीआर, वर्ड नोट कीजिए, आप लोग एज ए मैनेजमेंट आप लोगों को जानना चाहिए, आगे पढ़िएगा भी। सो मेनी एडिशनल रीडिंग इज रिक्वायर्ड टू हैव योर कंप्लीट एक्यूमेन ऑफ द मैनेजमेंट। तो प्रोसेस रीइंजीनियरिंग करने के लिए हमें जरूरत है, और हो सकता है हम 1 महीने क्या 15 दिन में पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट कर लें। और अगर 1 महीने का क्रेडिट मिल रहा है, 15 दिन में साइकिल कर लेंगे, कभी मुझे कोई ओवरड्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, आई विल बिकम ए कैश सरप्लस ऑर्गेनाइजेशन, मेरा तो पैसा पहले आ जाएगा। राइट और नॉट? तो कैसे हो सकता है? तो रॉ मटेरियल आपका, अब इसमें मान लो 3 महीने को हम लोग पहले थोड़ा सा बांट लेते हैं। सपोज कीजिए रॉ मटेरियल में आपका 15 डेज रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस में 1 मंथ रहता है,
फिनिश गुड्स में 15 डेज रहता है, और लेट्स सेल्स में, मतलब जो कस्टमर के पास फंड लॉक्ड है, बाय नाउ पे लेटर, से यू आर गिविंग 1 मंथ क्रेडिट, कस्टमर को कहते हो कि आप अभी खरीद लो, कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद पेमेंट कर देना. दिस इज अ क्रेडिट सेल्स. So it's got completed 3 months. Your logged in is there in the raw material 15 days, in 1 month work in progress, 15 days in finished goods, and 1 month in sales. Sales here it is customer. Account receivable, bills receivable, whatever term you want to use. Clear? करना क्या है अब इसको? रिड्यूस करना है. और रिड्यूस करना है, रिड्यूस करके सबसे पहले ऐसा करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है 1 मंथ ले आए, 15 दिन छोड़ देते हैं, 1 मंथ की बात करते हैं. अगर 1 मंथ रॉ मटेरियल का पीरियड है, सॉरी 15 डेज, 1 मिनट, I'm raw material is 1 month, work in progress is 1 month, finished good is 15 days, and here it is 2.5 months, 2.5 months. That is 75 days credit. कितना हो गया, ऐड कीजिएगा, 2.5 and 15 days कितना हो गया? 3 plus 1 month, 4 minus 1 month. Raw material period will be minus. Is it clear? आपका रॉ मटेरियल पीरियड क्योंकि पेबल है, राइट? या एक और टेक्निक है, आपको मैं बताता हूं, थोड़ा सा धीरे धीरे इसको एक्सपैंड करते हुए देखिए. सप्लायर में यहां लिख रहा हूं, which has given you 1 month credit and raw material period is 15 months, I am taking 15 days I am taking. जैसे पहले मैंने लिया था 15 days, raw material period 15 days, which is lying in your stock. Here I take now 2 months only, so making it 2 months 15 days, 1 month 15 days, making it how much? 4 months, minus this credit which you have got for 1 month, that will be deducted, and that deduction will ultimately make you total 3 months of period, operating cycle. So operating cycle is what? How you will be counting your raw material period plus work in progress period plus finished goods period plus your sales period, means customers holding, minus whatever your suppliers or AP, accounts payable period. Clear? So 4 will be plus here, 1, 2, 3, 4 will be plus, 1 will be minus. That will give you operating cycle. This is the calculation of operating cycle. But your operating cycle practically should be 0. जितना आपका पॉजिटिव बनता है उतना नेगेटिव हो जाए, आपको अपने पॉकेट से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है. ऑब्जेक्टिव यही है. क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है, हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस दिस इश्यू. I am not going to timing touch this one. Supplier has given me 1 month of credit. I am happy with that 1 month of credit. Now question is how to reduce this period. Reduction is required, and I want to finish my entire operating cycle in 1 month of period. Then only I'll not be requiring any payment from my pocket, and my pocket means borrowing from the market. Is or not? आएगा पैसा, जहां से आना है सेल्स से आना है, सेल्स के थ्रू पैसा आएगा, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे. एनी गुड बिजनेस मस्ट बी वर्किंग ऑन प्रॉफिट. यस और नॉट? Any good business must be working on profit, and when working on profit means sales value must be higher than the combination of entire cost. तभी तो बिजनेस सर्वाइवल कंटिन्यूएशन हो सकता है. सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस विल बी देयर. जितना आप रिसीव करोगे कस्टमर से, उससे कम का आपका खर्च होगा, क्योंकि बचा हुआ डिफरेंस इज प्रॉफिट.
तो ये तो क्वेश्चन हो नहीं सकता है कि मेरा सेल से ज्यादा पेमेंट हो जाए, ये संभव नहीं है। माय बिजनेस इज ए हेल्दी बिजनेस, रनिंग बिजनेस, गुड बिजनेस। अब क्वेश्चन उठता है फर्स्ट कंपोनेंट रॉ मटेरियल 15 डेज कैसे रिड्यूस करेंगे? हाउ वी विल रिड्यूस दिस रॉ मटेरियल 15 डेज? व्हाट इज 15 डेज रॉ मटेरियल? यू आर बाइंग द रॉ मटेरियल, raw material has come to your yard, to your stock, to your inventory, and 15 days waiting for your use. 15 days waiting for use. आप एक स्पेयर पार्ट्स मंगवाए हो, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, असेंबली लाइन आपकी है, वो स्पेयर पार्ट जो आज सपोज करो 1 तारीख को आया है, वो 15 तारीख तक स्पेयर पार्ट्स अपने सेल्फ पे पड़ा हुआ है, 15 दिन पड़ा हुआ है। 16 तारीख को वो निकल के जाके मशीन में या जहां लगना है वहां लगेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो, एक सीमेंट आपने मंगवा लिया, सीमेंट के बैग्स पड़े हुए हैं, आपने जो मंगवाया 15 दिन के बाद वो यूज होगा, तो हाउ टू रिड्यूस इट? दिस इज द पॉइंट विच यू हैव टू एड्रेस, दिस इज द डिफरेंस विच यू हैव टू क्रिएट, एंड दैट रिडक्शन इज पॉसिबल only when you follow one philosophy: if you don't require now, don't buy now. What is the philosophy? If you don't require now, don't buy now. And that philosophy in global environment especially originated, practiced and populated by Japanese, called just in time. क्या कहलाता है? Just in time. जब आपको जरूरत नहीं था आज, तो आपने मंगाया क्यों आज? Am I clear? So this can be addressed. Raw material period can be addressed by following just in time. Unfortunately, what is our limitation? Still we understand and try to understand and calculate a concept of inventory called EOQ. What is called? Economic order quantity. और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि ग्लोबल एनवायरनमेंट में बिग फॉर्च्यून कंपनीज 1970s के बाद से ईओक्यू कॉन्सेप्ट को छोड़ चुके हैं, और हम आज भी क्लासरूम में ढो रहे हैं। मजबूरी है, चल रहे हैं। तो जब आज भी ईओक्यू क्लासरूम में ढो रहे हैं, बड़े खुश होते हैं पुराने सीनियर टीचर, तो पूछते हैं ईओक्यू का फॉर्मूला आता है? इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं। मैं एक इसमें वाकया भी बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा सुन के। वन ऑफ माय क्वालिटी मैनेजमेंट स्टूडेंट was shifting back to India from USA. He was a quality manager in USA in one big organization. तो महिपालपुर के पास जो ये कार्गो वाली कंपनी है, उसमें इंटरव्यू निकला था। इकलौता था घर का, पेरेंट्स का प्रेशर हुआ कि वापस इंडिया आना है, तो आ गया। बाद में फिर यहाँ, क्योंकि यहीं सेटल करो, सब कुछ है। 4-5 साल नौकरी कर चुका था विदेश में, यूएसए में, बड़ी कंपनी में, बिग फर्म में, क्वालिटी मैनेजर के थ्रू। तो एक वॉक इन इंटरव्यू के लिए वो देख के क्वालिटी मैनेजर का निकला हुआ था, और उससे तो गया इंटरव्यू देने के लिए। एंड रियल स्टोरी है, एंड ही हैड बीन माय स्टूडेंट आल्सो इन क्वालिटी मैनेजमेंट एमबीए। 2005-06 के आसपास की बात बता रहा हूँ, आज से बहुत पहले। तो उसको पूछा कि भाई ये बताओ कि आईएसआई क्या होता है, आईएसआई मार्क क्या होता है? तो बोला कि मुझे नहीं मालूम है आईएसआई क्या होता है, आईएसआई मैंने कभी सुना ही नहीं है। तो जो इंटरव्यू लेने वाला था बोला, तुम क्वालिटी मैनेजर के लिए आए हो और आईएसआई नहीं सुने हो, तो तुम क्वालिटी के बारे में जानते ही क्या हो? 26-27 साल का लड़का आराम से ऑनेस्टली बोला कि सर मैं 6 सिग्मा में ब्लैक बेल्ट होल्डर हूं। क्वालिटी का मतलब 6 सिग्मा में ब्लैक बेल्ट होल्डर हूं, यही मुझे क्वालिटी आती है। तो वो बोला कि 6 सिग्मा क्या होता है, ये हमने नहीं सुना है कभी। Then he simply stand up and said that, sir, sorry sir for your time, I am at a wrong place. What I mean to say,
अब क्वालिटी की बात अगर करते हैं तो आप लोग अगर थोड़ा भी क्वालिटी के बारे में जानते होंगे, सिक्स सिग्मा क्या होता है और सिक्स सिग्मा में ब्लैक बेल्ट क्या होता है, अगर ये जो जानते होंगे और इधर आईएसआई क्या होता है ये भी जानते होंगे, दोनों कहां किस डिफरेंस में है, दोनों क्वालिटी है एग्जैक्टली दोनों मैनेजमेंट यहां भी है। बुक कभी भी आपको उस लेवल पे एलिवेट नहीं कर सकता जिस लेवल पे आप होना चाहिए, किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं। तो आप कैसे रॉ मटेरियल रिड्यूस करेंगे, हाउ इट कुड बी पॉसिबल, you will study this. Right now I am not going to discuss just in time because that is a separate already in your production operation management. Just in time is a full chapter. There are 7 kind of wastages which has to be eliminated and we have to have those wastages to be eliminated. How Kaizen is going to be there, why anyone is able to produce no defect product, zero defect product and without any raw material lock-in, no raw material lock-in. So raw material should be reduced to a greater extent. A number of questions may raise in your brain, sir, when I'll place the order, please listen, when I'll place the order, shipment may take time, बारिश हो गई, कुछ हो गया। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पूछ सकते थे, तो मैं यही कहूंगा कि आपको फिर से जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि जस्ट इन टाइम वर्क कैसे करता है। जस्ट इन टाइम में देयर इज नो इश्यू एट ऑल, द वे इट इज गोइंग टू बी देयर दैट हैज टू बी स्पेसिफाइड। Since it is going to be a separate chapter altogether, my concern time being with that is that in reducing operating cycle we can reduce the holding period. होल्डिंग पीरियड मीन्स कितने दिन तक आप खरीद के रख रहे हो और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू द WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। कैन इट बी पॉसिबल वी कैन एक्सपेडाइट द थिंग्स, एंड एक्सपेडाइटिंग द थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट लाइक एनीथिंग। Work in progress is what? When you started your production and when your finished good is ready, the days or period locked. It could be few minutes for some product, it could be few months or even for few years. I am making a flyover, it may take few years. Can it be possible it can be reduced? And if you are reducing it, that holding period is going to be down. Too much of down is there. एक छोटा कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं and that calculation will help you to understand what kind of hidden cost could be there which can be able to reduce your production to a fast pace. Suppose अगर आपके पास कोई ऐसा है जिसमें let's say 1000 rupees of the total investment is there and lock-in period is going to be say for 2 years, 24 months, and let's you are able to reduce it to 6 months. So 6 months of interest on this is going to be saved to you. 6 months of interest. And if suppose 10% of the rate of interest is there, then 1000 rupees का 1 year का interest कितना बनेगा? 100. 6 months का कितना बनेगा? 50. और अगर ये 6 month आपने बचाया और ये 1000 गलती से अगर 1000 करोड़ हो तो बचेगा कितना? 50 crore. Bigger the organization, more it is concerned. How can it be possible? अगर वर्क इन प्रोग्रेस, मैं अभी भी कहता हूं, देखो ये डिफरेंस है। लर्निंग के लिए कोई जरूरी नहीं है कि लर्निंग कैसे होता है, कहां से होता है। इंडिया में बेस्ट लर्निंग है, लेकिन हम उसे सीखना चाहें तब तो। एक एग्जांपल बताता हूं आपको, आप लोगों के लोकल एग्जांपल मैं दे रहा हूं। DND फ्लाईओवर आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली नोएडा को जोड़ता है। DND फ्लाईओवर 1992 का प्रोजेक्ट था, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। बाद में 98 में ये फाइनली प्रोजेक्ट EPC कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ। 100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था टोटल, और उस प्रोजेक्ट को 30 दिसंबर 1998 में स्टार्ट हुआ है फंक्शन। 7 फरवरी 2001 को ऑपरेशनल स्टार्ट हो गया।
99.86 करोड़ में। पैसा सेव हुआ, टाइम बचा लिया गया, फास्टेस्ट पेस पे काम किया गया, एंड बिल्डर वॉज मित्सु मेरुबेनी, जापानीज बिल्डर। ठीक उसी के एडजसेंट में निजामुद्दीन ब्रिज भी बन रहा था, इंडियन बिल्डर थे, एंड इट टुक एटलीस्ट 3-4 years एक्स्ट्रा टाइम। तो एक प्लेस पे एक, जबकि नोएडा टोल ब्रिज को काफी दिक्कतें हुई थी, इवन बिकॉज ऑफ देयर वाज ए बर्ड सेंचुरी, है ना, ओखला बर्ड सेंचुरी आप जानते हैं वहां है, उसमें क्लियरेंस में उनको काफी दिक्कत हो गई, कितना उनको स्पेस छोड़ना था उसके लिए दिक्कत हुई, 3 जगह रिवर को क्रॉस करना है उस पर दिक्कत हुई। वो अलग बिल्डअप है, उसका कॉस्ट एस्टिमेशन मेरे पास है, पूरा कॉस्ट कैलकुलेशन है, फाइनेंसिंग है उसकी, और कैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया बाद में और फाइनली रिकवर किया। बट बगल का प्रोजेक्ट था, वो काम नहीं किया। सेकेंड एग्जाम्पल बताता हूं, दिल्ली का ही, दिल्ली मेट्रो 24 आवर्स काम करता है और फास्टर, इसलिए गिनीज बुक रिकॉर्ड भी है इसका, रिकॉर्डेड है दिल्ली मेट्रो। फर्स्ट वर्ल्ड में ऐसा कोई मेट्रो है जिसको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अवार्ड मिला हुआ है, स्टेट ऑफ द आर्ट अवार्ड है इसके पास, वर्ल्ड का फर्स्ट है। और यहीं पे अभी दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी और गवर्नमेंट के चल रहे हैं, वो लोगों को परेशान करके रखा है। रोड खोद के छोड़ देते हैं, पता नहीं कब कहां आप चलते रहोगे, दिखाई नहीं देगा काम कहां कर रहे हैं। अब आप अगर कैसे आप कर सकते हैं 8, और ये सिटी है, दिल्ली सिटी है, इसको आप इजीली आप आराम से कवर कर सकते हैं। 8 आवर्स अगर आप वर्क करते हो और 8 आवर्स वर्क करके छोड़ देते हो, मैं इंसिडेंटल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा अगर 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च हो रहा है, टाइम खर्च हो रहा है, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। वो काउंट करूंगा हमारे जीडीपी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा अगर इकोनॉमी को टोटल कनेक्ट करके देखें तो। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग अभी तक यहां नहीं हुई है, अभी तक नहीं है, आज के डेट में भी नहीं है, बहुत से जगह खोद के रखे हुए हैं। और रिजल्ट क्या होता है, इट इंक्रीजेज योर कॉस्ट लाइक एनीथिंग, और इंसिडेंटल कॉस्ट इज वेरी हाई टू द पब्लिक सोसाइटी एट लार्ज। आपको क्या दिक्कत है रात में भी काम करने में? अगर आप रात में भी काम करते हैं, जब तक आप आज 5 बजे शाम में छोड़े हो और कल सुबह 8 बजे उसको पकड़ोगे, तब तक में मालूम हो गया कि 2 टाइम्स और प्रोग्रेस हो गया होता। 8 आवर्स की जगह 24 आवर्स आप वर्क कर सकते थे और फिनिश फास्टर होता। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू आज के डेट में भी गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को नहीं है। जबकि यहां आके यहीं के प्रोजेक्ट में अगर कोई फॉरेनर आता है, काम करता है, वो फास्टर करके निकल जाता है, प्रॉफिट बना के चला जाता है, और यहां वाले रोते भी रहते हैं। और उसके बाद जब उनका कॉस्ट हाई होने लगता है तो उसमें क्या हुआ, नेगेटिव अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, क्वालिटी को रिड्यूस करके उससे मार्जिन कमाना चाहते हैं। कंप्लीट मिसिंग मैनेजमेंट, they don't understand how to really manage the things. So ultimately it is not what you are doing, you can reduce work in progress also if continuously you can take it. Second, technologically integration. If suppose some work you are doing manually which is going to take your 6 hours, why not to do in the machine which might be possible in 6 minutes? It will be saved like anything. दिल्ली मेट्रो के एक से एक सक्सेस स्टोरी लिखे हुए हैं, और दिल्ली मेट्रो जब मैं बोलता हूं तो वेरी मच इन दिल्ली। इवन टेक्नोलॉजिकल फाइट हैज बीन वेरी स्ट्रांग। 2 प्रोजेक्ट कभी भी आप लोगों को बताऊंगा बाद में। आप लोग पंजाबी बाग का फ्लाईओवर चढ़ते होंगे और उसको वर्टिकली 70 फीट हाइट पे मेट्रो क्रॉस करता है, और कैसे आप, क्या आपको लगा था कि वहां रिंग रोड को रोक के ऊपर डाला गया है स्लैब? कभी पता चला कोई न्यूज में कि वहां काफी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है? नहीं ना। और कम से कम 15 साल पुराना, 15-20 साल पुराना तो है, और वो बिना डिस्टर्ब किए हुए, जानते हैं कितने देर वो रोका है ट्रैफिक को? एक साइड से 2 घंटे, दूसरे साइड से 2 घंटे, ओनली 4 आवर्स, दैट ऑल्सो फ्रॉम 12 o'clock नाइट टू 4 o'clock इन द मॉर्निंग। और उसका सारे नट बोल्ट नेट लगा के किया गया है काम, नीचे ट्रैफिक रन कर रही है, ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं किया गया है। अगर अभी आप लोग पंजाबी बाग से आते होंगे तो वहां फिर से दोबारा एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारा लोकल वाला कर रहा है ना। और सुबह का मालूम है कि कान पकड़ के आप रास्ता ढूंढते हो कि किसी दूसरे रास्ते से,
इसका मतलब आज भी लर्निंग नहीं है वहीं के प्रोजेक्ट से। इसलिए ऐसा नहीं है, ये अंदर से ये लर्न करने का और अंदर से बात होगी। उसमें भी हो सकता है कोई एमबीए काम कर रहा होगा लेकिन थ्योरी पढ़ के एग्जामिनेशन देख दिया होगा। They don't understand what exactly it is going to be. तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल तो बुक में बड़ा आसानी से आराम से लिख दोगे, डेज घटा दोगे, कैसे घटाओ, लेकिन घटेगा प्रैक्टिकली कैसे जाके? How you will be making it? You require that technical integrations. You have to have that insight how you are going to use. Then next to it, finished goods. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, who will be in a demand whose quality is better? किस चीज के लिए आप इंतजार करोगे कि आए और जल्दी से खरीदें? दो तरह का होता है प्रोडक्ट, एक होता है मेक फॉर सेल्फ, यहां सेल्फ SHELF है, दूसरा होता है मेक ऑन ऑर्डर। कौन सा सक्सेसफुल बिजनेस है? मेक एन ऑर्डर। और मेक एन ऑर्डर होगा तो फिनिश गुड्स पीरियड क्या होगा? नहीं होगा। आप ऑलवेज प्रेशर में रहोगे शिपमेंट के लिए, ठीक है? जैसे किसी पार्टी में तंदूरी वाले का होता है ना, और सब तो सेल्फ पे रहता है और उसके पास लोग खड़े रहते हैं प्लेट लेके, यही है ना? ये अगर आप फिनिश गुड्स को रिड्यूस कर पाए, ये तब होगा, कस्टमर आपका वेट तब करेगा जब आपका क्वालिटी प्रोडक्शन होगा। एंड व्हाट इज क्वालिटी? I am repeatedly talking today quality. What is quality? How to define quality? Any one of you? Please define quality and louder so that it could be recorded also. What is quality? And how it is checked? Anyway, write the definition of quality, which is very important. Conformation of a specification is called quality. CONFOR, confirmation नहीं, conformation. Conformation of a specification is called quality. And how it is checked? It is always checked with the negative test. We don't check for quality, we check for defect. Is it clear? We always check for defect. If there is no defect, then there is a quality. क्वालिटी का कोई चेक नहीं होता, चेक किसका होता है? डिफेक्ट का होता है, और डिफेक्ट का एब्सेंस क्वालिटी कहलाता है। आप जब ये अचीव करेंगे तब कस्टमर आपका डिमांड हाथों हाथ लेगा। इन मार्केटिंग मैनेजमेंट टू वर्ड्स आर कॉमनली यूज, पुल एंड पुश। आप स्टार्टिंग में पुश करते हैं अपने प्रोडक्ट को, शोकेस करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मार्केट करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंडोर्स करते हैं, तब जाके कस्टमर सोचता है लें। उससे नहीं होता है आप कहते हो अच्छा चलो जी आप लो, अगर नहीं होगा एक सप्ताह में लौटा देना। आप मजबूरन क्रेडिट सेल करते हैं, लेकिन ऐसी कंपनियां हैं जो कोई क्रेडिट सेल नहीं करती, कहती है कैश सेल है। रैदर कैश सेल तो छोड़ दीजिए, एडवांस सेल्स है, पहले बुक कर लो, पेमेंट कर दो, सर्विस बाद में देंगे। पैसा पहला उल्टा मेरे पास आ गया, उस पैसे से मैं अगर चाहूं अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हो तो उसको इन्वेस्ट करके हम उससे रन कर लेंगे अपना बिजनेस, और पैसा तो मेरा इनकैश हो जाएगा। एग्जाम्पल इंडियन रेलवे 3-3 महीने पहले पैसा ले लेता है, सर्विस बाद में देता है, लेकिन मैनेजमेंट नहीं आता, फिर भी घाटे में चलता है। जिसका कस्टमर रेडी हो, कस्टमर को आप विंडो क्लोज कर रहे हो, ये बात मैंने बहुत पहले भी इंडियन रेलवे में कहा था, तो वो लोग थोड़ा उनके सीनियर GM लेवल के लोग थे, नाराज हो गए थे। मैं बोला मैं पहला बिजनेस जानता हूं जो कि अपने कस्टमर को मना करता है नो विंडो। लोग मजबूरी में टॉयलेट के गेट पे बैठ के आपको फुल पेमेंट करके जाते हैं और आपके एम्प्लॉय को ज्यादा एक्स्ट्रा बोनस देके जाते हैं, और फिर भी आप आराम से कमांड करके चला रहे हो, और गलती से उसमें थोड़ा सा कॉमर्शियलाइजेशन लाने की कोशिश की जाएगी तो वही पब्लिक जो मजबूरी में जाती है, डांट सुनते जाती है, रास्ते में लेट के नीचे लेट के जाती है, वही पब्लिक कहेगी नहीं नहीं इसको प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए।
ये तुम जितना उस काले कोट को देते हो उतना में तो तुम ट्रेवल कर लोगे इज्जत के साथ, बेटर सर्विस, दैट्स व्हाट रिक्वायर्ड। हाउ इट इज रियली नीडेड, जब एडवांस में बुकिंग हो रही है, आपके पास पैसा पहले आ रहा है, कस्टमर ऑलरेडी कंफर्म्ड है, रेस्ट इज ऑल इन हाउस, यस और नॉट। अगर किसी बिजनेस में कस्टमर मेंटेन्ड है, सस्टेन्ड है, तब बिजनेस के फेल्योर का कोई चांसेस नहीं, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता जो बिजनेस फेल करे। एग्जांपल बीएसएनएल, पूरे कंट्री को कनेक्ट करके भी डिस्कनेक्ट हो गया वो, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ देयर ऑपरेटिंग साइकिल इज रनिंग, नेवर रियलाइज्ड। साहब हिस्ट्री से पढ़ के सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके मैनेजमेंट नहीं आ जाता, और गाड़ी में लाल बत्ती लगने से उसकी इफिशिएंसी नहीं बढ़ जाती, और ये सामने प्रूफ है कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होने का। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, सारा फिनिश गुड्स और ये सेल्स को डाउन करके, सेल्स के पीरियड को आप कैश बना के, क्रेडिट को डाउन करके, नो क्रेडिट सेल्स और लो क्रेडिट सेल्स। क्योंकि क्रेडिट सेल्स में सिर्फ इतना ही नहीं है पैसा आपका लॉक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी नॉट टू रिकवर। अगर क्रेडिट सेल ही नहीं है तो बैड डेट का कोई पोजीशन बनेगा क्या? तो ये तो आपको अब और मालूम होता है, बाद में एक नया कॉस्ट क्रिएट करते हैं, अकाउंटिंग में बड़े फैसिलिटेशन से उसको प्रोविजन करते हैं, डिस्काउंट करते हैं, उसको ल्यूड करते हैं, आ जाओ भाई तुमको 2% डिस्काउंट दे दिया। आप अगर इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी करते हैं, और मैं इतनी बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर हु आर मेकिंग इट इवन बिगर, high value, high net worth organization. I'll request you all to read the quality management and the financial management, operating cycle management, production management of Toyota. Toyota is one of the best car maker. I know you all must have heard the name of Toyota. Global car maker. Look into their financial operations, how they manage it. Look into their operating cycle. Look into their working capital management, inventory management, and you will find out excellent example which should be copied by one and all. That should be a case study. I'll get opportunity, I'll share with you those cases also. But I'll simply tell you one important point related to whatever this work in progress was there. Work in progress in the car manufacturing or automobile sector is called actually assembly line. जहां पे स्टार्ट करते हो और एक कार बन के रेडी होके चला आता है। होता क्या है कि एक ही असेंबली लाइन होता है, मे बी पैरेलल यू क्रिएट इट, बट उसी असेंबली लाइन को आप चेंज करके अलग अलग मॉडल के लिए तैयार करते हैं, राइट? जितने मॉडल ऑफ कार होते हैं उतने तरह का उतना असेंबली लाइन नहीं होता है। इट इज अ रीएडजस्टमेंट, इट इज रिकैलिब्रेशन टू मेक इट। अब मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल आप लीजिए कि टोयोटा का इनोवा बन रहा है और उसके बाद उसको लेक्सस बनाना है, तो क्या इनोवा के डिजाइन से ही लेक्सस बनेगा? लेक्सस चेंज करेगा। तो आप क्या किए कि जब टोयोटा का प्रोडक्शन खत्म होगा या आप उसको रोकोगे, आपको चेंज करना पड़ेगा पूरा शिफ्ट, सारे मशीन को री अरेंज करना पड़ता है। जिस समय मशीन रीअरेंज हो रहा होगा उस समय कितने कार प्रोड्यूस हो रहे होंगे? जीरो, कोई कार प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। और जितने लेबर और जितना वर्कफोर्स है, आप उसको पेमेंट करोगे या नहीं करोगे? करना है, सारा कॉस्ट बियर होगा आपका, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। दिस इज बेसिकली वी कॉल इट चेंज ओवर फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट। शिफ्ट टाइम, क्या टाइम होता है इसका? शिफ्ट टाइम करते हैं, आप शिफ्ट कर रहे हो। टोयोटा, ये मैं लेट 90s की बात बता रहा हूं, टोयोटा वॉज टेकिंग 10 मिनट्स टू शिफ्ट। 10 मिनट में पूरी की पूरी असेंबली लाइन वो बदल देता था। और उस समय का जायंट Toyota was the third largest at that point of time. 2003 में Toyota became the second largest manufacturer and 2008 में Toyota became the first world's largest manufacturer. जिस समय वो थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर था, और जनरल मोटर GM of the USA, which was the biggest company of the automobile sector at that point of time,
ये GM जो था, इट वॉज टेकिंग 6 आवर्स टू शिफ्ट, 6 घंटे लेते थे किसमें, शिफ्ट करने में 6 घंटे लेते थे, और टोयोटा कितना लेता था, 10 मिनट। यू कैन कैलकुलेट, क्यों नहीं वो ओवरटेक करेगा उसको जाके। आप 6 घंटे आपका आइडियल है, कॉस्ट हाई है, आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, लेकिन आप शुरू से इतने बड़े थे कि आपको कभी फील नहीं हुआ कभी जरूरत थी। और आपको ताज्जुब होगा ये जान के, हिंदुस्तान मोटर वॉज टेकिंग मोर देन ए डे। आज हिंदुस्तान मोटर कहां है? हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय एम्बेसडर नाउ? ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, और सब प्रोडक्ट में तो फिर भी बहस हो जाए डाइनिंग टेबल पे कि ग्रैंड पेरेंट्स कैन आस्क फॉर ए डिफरेंट प्रोडक्ट देन द ग्रैंड चाइल्ड, लेकिन ये कार में जो है ना, मेरे ख्याल से आज बूढ़े से बूढ़े ग्रैंड पेरेंट भी नहीं बोलेंगे एम्बेसडर खरीदो। लॉस्ट द मार्केट। जिसका मोनोपोली था पॉलिटिकल सिस्टम में, टैक्सी सिस्टम में, और वही कार था, 1.5 2 साल तक इंतजार करना पड़ता था उस कार के लिए, 60s एंड 70s में, 80s में। आप 1.5 साल, और उसका ब्लैक होता था। मैंने नंबर लगा दिया, मैंने अपने 3-4 लोगों को कह के नंबर लगा दिया, और जब मेरा नंबर आ गया ना, तो जो रेडी कार खरीदने वाले हैं उनको ब्लैक में बेचूंगा। कार मुझे मिलेगा, वो कार बेशक आप ले जाओ, फर्स्ट डे से ही चलाओ, मैं फिर बाद में ट्रांसफर करूंगा, मुझे 20-25 हज़ार 50 हज़ार जो मिलना है मिल गया, मेरे वेटिंग टाइम का, मुझे कार चाहिए नहीं। खूब धड़ल्ले से होता था, इतना तक ब्लैक मार्केटिंग होती थी। सो इज टू सीमेंट, सीमेंट की ब्लैक मार्केटिंग होती थी, सो इज टू शुगर। तो ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, दीज अरेंजमेंट्स अल्टीमेटली मेक इट, कि कैसे करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका ये साइकिल कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो ऑपरेटिंग साइकिल आप रिड्यूस करेंगे। अब देखिए, इसमें 4 इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट हैं, चारों पढ़ना है आपको। पहला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जॉट डाउन दैट। आज स्लाइड आपको दिखा नहीं रहे, ऐसे भी आपको करना है, पूरा का पूरा एक चैप्टर इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे है। इन्वेंट्री में आपके पास, inventory you have 4 components again within inventory: raw material, work in progress inventory, finished goods inventory, and spare parts। spare parts, ये 4 तरह के इन्वेंट्री होते हैं: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्पेयर पार्ट्स। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट वन फुल चैप्टर, हाउ मच इन्वेंट्री शुड बी देयर। मैं लाइक करूं ना करूं, मैं ईओक्यू के बारे में जो बोलना है बोल दूं, लेकिन चैप्टर में है, स्टिल ईओक्यू जिंदा है अभी। और मैं पिछले 10 साल से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ईओक्यू प्रैक्टिस कर रहा हो, कोई नहीं कर रहा, स्टिल बुक में है। मुझे मौका मिलेगा, मैं सबसे पहले सिलेबस में से इसको हटाऊंगा, जरूरत नहीं है। ईओक्यू है, बट थोड़ा सा आपको जाए, वहाँ क्या होता है, 2 लेवल है, दैट इज हाउ मच स्टॉक मिनिमम शुड बी देयर, हाउ मच सेफ्टी स्टॉक शुड बी देयर। 2 है पार्ट, न्यूमेरिकल है, कवर करना है आपको। कैसे, अभी बताएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन्वेंट्री मैनेजमेंट लिख लीजिए, एकदम बिल्कुल न्यूमेरिकल आएगा, जिसमें आपको मिनिमम स्टॉक, ऑफ कोर्स एग्जाम्पल हो सकता है, नहीं चाहते भी ईओक्यू पे ही क्वेश्चन आ जाएगा। आप कह सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इतना फिर बोला क्यों था आप, ये वही देना है तो राइट। सेफ्टी स्टॉक वगैरह निकाल के कैलकुलेट करना है, दैट इज इन्वेंट्री। सेकेंड वन इज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट है पोर्शन रिसीवेबल मैनेजमेंट का। रिसीवेबल मैनेजमेंट में थोड़ा सा होता है कि आप रिसीवेबल मैनेजमेंट भी जब जैसे ही बात करते हैं, इसका मतलब मान के चल रहे हैं कि कैश सेल नहीं कर पा रहे, क्रेडिट पे सेल करना हमारी मजबूरी है कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखने के लिए। अगर सिर्फ सारा कैश पे सेल करें तो मुझे रिसीवेबल की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि आपको फिर देखना पड़ेगा कि क्रेडिट कितना पीरियड में देते हो, रिकवरी के लिए आपका प्लान क्या है। जब क्रेडिट आपने दे दिया कि आप 2 महीने में देगा, तो तगादा भी तो करना पड़ेगा ना, यू हैव टू कॉल, तो रिमाइंडर देने पड़ेंगे। अगर नहीं दिया तो क्या करोगे, कैसे रिपोर्ट करोगे, कैसे कलेक्शन एफर्ट लगाओगे आप। अगर बैड डेट हुआ तो कितना कॉस्ट होगा, अगर डिस्काउंट देंगे तो कितना कॉस्ट होगा।
अगर मैं थोड़ा 2% डिस्काउंट देके आपसे पैसा आपको ल्यूड करके पहले ले लूं rather than taking after 90 days, तो मेरे लिए बेहतर होगा कि 2% छोड़ के ही सही पेमेंट तो आ गया, हर 100 रुपीज़ पे 98 रुपीज़ आप मुझे दे दो। इससे दो फायदा हो जाएगा, मेरा पैसा मेरे पास आ गया, बैड डेट की पॉसिबिलिटी घट गई, आई कैन यूज माई ओन मनी इंस्टेड ऑफ बोरोइंग इन द ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। तो दैट इज व्हाट रिसीवेबल मैनेजमेंट, इसमें आपका कलेक्शन पीरियड वगैरह है ना। और तीसरा जो चैप्टर है, जो बहुत ही डायनेमिक चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट, and more the cash churning is there, more cash management is going to be bigger, better and wider. Especially cash management सबसे ज़्यादा important है बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में, जहाँ कैश पे ही सारा काम है, जहाँ हर घंटे में अमाउंट का कॉस्ट है। आप उस हर घंटे कॉस्ट को, अगर कोई बैंक है अपना डिपॉजिट रखता है, कितना कैश होल्ड करना चाहिए, हाउ मच लिक्विडिटी शुड बी मेंटेन, या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कितना कैश रखना चाहिए, इट इज एज सिंपल एज यू हैव टू डिसाइड हाउ मच कैश शुड बी देयर इन योर वैलेट, इन योर पॉकेट, इन योर पर्स। क्योंकि इसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी इश्यूज होते हैं। मोर कैश इन योर पॉकेट विल गिव यू कॉन्फिडेंस यू हैव मनी, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी गेन और लिक्विडिटी इफेक्ट। जब आपके पॉकेट में, मेरे पॉकेट में अभी 10,000 पड़ा हो, मैं खुश हूं, चलो कोई भी खर्चा आएगा देख लेंगे, तो मेरे पास लिक्विडिटी फील है। लेकिन देयर इज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैं उतना जो 10,000 मेरे पर्स में पड़ा हुआ है वो मेरे लिए अर्न नहीं कर रहा, देयर इज ए नो प्रॉफिटेबिलिटी एसोसिएटेड टू इट। अगर इसमें से 10,000 में से 8,000 मैं बैंक में जमा कर देता तो वहां एक इंटरेस्ट आ रहा होता, इंटरेस्ट अर्न हो रहा होता। तो मैं, there is always challenge, there is always a trade-off between liquidity and profitability. How much liquidity and how much profitability ought to be maintained. More the digital you are in the payment system, more you are going to be profitable. Just in time इसी को कहते हैं। आपको 49 रुपीज़ का बिल बना हुआ है, निकाले और बैंक से देन एंड देयर 49 पेमेंट किए, 50 नहीं पेमेंट किए हैं। अगर कैश निकालना होता, बैंक जा ही रहे हैं तो 5,000 निकाल लो, रख लो, है ना। बार बार बैंक का चक्कर कौन लगाएगा। देखिए कैसे ये आराम से हमारा जो डिजिटल पेमेंट है वो जस्ट इन टाइम की तरफ चला गया है। रेस्ट मनी इज अर्निंग फॉर यू, राइट। रेस्ट मनी डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट इज अर्निंग फॉर यू, इट इज व्हाट you require, that much amount you are going to pay, that much you are going to use. This is just in time in the cash management. There is a dynamic cash management also. So दो part है, static cash management and dynamic cash management. Static cash management is going to be there, that bare minimum cash has to be available all the time with the organization. Bare minimum cash should be available all the time for the organization. Whereas dynamic is as and when required. ये इन्वेंट्री में भी यूज होगा। दिस डायनेमिक इज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। देखो दो तरह से होता है। अब इसको मैं यहां पे एक ग्राफ से दिखाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो कि ये वाला जो है ये स्टैटिक कैश है, इतना कैश आपको ऑलवेज मेंटेन रखना है, ये दिख रहा है यहां पे। और अब इसके बाद मान लो बीच में थोड़ा सा पीरियड ऐसा आ गया जिसमें इतना कैश की जरूरत है, तो इस पीरियड में आपको इतना एक्स्ट्रा कैश चाहिए, इस पीरियड में एक्स्ट्रा कैश चाहिए। आपको जिस पीरियड में जितना कैश चाहिए एक्स्ट्रा आप उतना ही लीजिए और जितना मिनिमम पीरियड के लिए लीजिए। यहां पे क्या एक ट्रेडिशनल इंडिया में अगेन मिसकॉन्सेप्शन कह लेंगे, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू द कैश मैनेजमेंट इज देयर, कि जब वो कैश बोरो करने जाते थे, बोरोइंग वाज सो कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट एंड द यू नो opaque process that people was requiring 2,000 rupees. Let's for example they were borrowing 5,000 rupees. पता नहीं फिर दोबारा कब मौका मिलेगा बोरो करने का, और लेके रखते थे। आपका कॉस्ट कितने पे होना चाहिए? 2,000 पे। आपको जरूरत कितने की है? 2,000 की, लेकिन आप बोरो 5,000 इसलिए कर लिया क्योंकि पता नहीं अगली बार फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब कॉस्ट 5,000 पे चला गया आपका और आप इनएफिशिएंट हो गए। और ये प्रैक्टिस आज भी है छोटे ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे 2020 के बाद से, मई 2020 स्पेशली 14 मई 2020 के बाद से डायनेमिक चेंज आया है।
माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस में। गवर्नमेंट ने ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको। शुरू में सिर्फ बड़े स्मॉल एंड मीडियम को था, अब माइक्रो को भी हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर वो चाहे तो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो मेनी थिंग्स हैज बीन चेंज्ड एंड हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बदल सकता है इससे, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई शेयर विद यू। अब ये जो जितना आपको है, इट इज हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू होल्ड। इफ सपोज आई एम रिक्वायरिंग 2000 rupees फॉर 2 months of period, should I borrow for 6 months of period? Answer is no. Only for 2 months period I should borrow. So it is the period and the amount both should be matching. The moment अगर मान लो 2000 के बाद मेरा 2 महीने के बाद सिर्फ 1000 की जरूरत है, मैं 1000 लौटा दूंगा। That is dynamism. I will be returning back to 1000. और ये सारा सब कुछ न्यूमेरिकल के स्टाइल से होगा, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में होगा, जिसमें फ्लो चार्ट आपके पास बना रहेगा। योर नीड ऑफ द कैश विल बी देयर एंड दैट नीड ऑफ द कैश, व्हेन यू आर गोइंग टू रिक्वायर दैट कैश, विल डिसाइड अबाउट हाउ मच यू आर गोइंग टू होल्ड, how much you are going to invest, and how much you are going to really put for how long. That is called dynamism or dynamic cash management. Am I able to make some sense to you what exactly what way operating cycle is going to work? And टर्म्स हैं, उसको आप बेस्ट कैसे मैनेज कर सकते हैं, कितना मैनेज कर सकते हैं, उस पर निर्भर करता है। दैट्स द वे एसोसिएटेड। आई एम होल्डिंग हियर। इफ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव, यू आर वेलकम। यू कैन आस्क एनीथिंग ऑन द कॉन्सेप्ट, बिकॉज आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। एनीथिंग ऑन द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल। आप जो कहीं पढ़े हो एसएलएम में, कहीं से भी आपके ब्रेन में कोई क्वेश्चन उठ रहा है, यू आर वेलकम। नहीं? No question? Should I feel myself I have completed and concept clear your concept? सब कुछ समझा दिया अच्छे से? दो ही चीज हो सकता है, या तो बिल्कुल नहीं समझे या सब कुछ समझा दिया। दूसरा वाला मुझे लेना देना नहीं है, मैं तो मान के चलूंगा आप लोग सब इंटेलिजेंट हो, सब कुछ अच्छे से समझ गए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, ऑपरेटिंग साइकिल से क्वेश्चन होगा। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, सिंपल क्वेश्चन है। पहला ऑपरेटिंग साइकिल कैसे, ये एमसीक्यू में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आपको मालूम है 4 कंपोनेंट ऐड करके 5वां माइनस करेंगे। पीरियड दिया हुआ है, आपको पीरियड निकल जाएगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू मैनेज ऑपरेटिंग साइकिल? रिड्यूस दैट ऑपरेटिंग साइकिल, make it as small as possible. There is another philosophy that every operating cycle is going to give you some margin, and that margin is your profitability. If cycle will be reduced, then in a given period of time, more and more cycle will be running, and every time your margin will come. So this is related to operating cycle. Then after that, coming back to the second point, components of working capital. And in components of working capital, I have already told you that there has to be inventory, there has to be receivables, there has to be cash management. Fourth वाला मैंने ज़्यादा नहीं बोला है, payables management, accounts payable, how you are going to make management of that. But otherwise, these three are very important. कौन कौन से तीन? Inventory and cash management. Yes. Okay, that is there. अब सारी बात हो गई, लेकिन हमने तो वर्किंग कैपिटल को डिफाइन ही नहीं किया। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? हाउ टू डिफाइन वर्किंग कैपिटल? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेट वर्किंग कैपिटल एंड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? Now these are the certain basic questions which I expected that you should be asking or you should be answering. Either ask or answer. See, working capital means whatever the fund required to run the business on day-to-day basis. That is called working capital.
If grossly we take gross working capital, it is called total of current asset. Total of current asset is called as gross working capital, GWA. But if suppose current liability is deducted from that, that is current asset minus current liability, that becomes net working capital. So, net working capital is actually current asset minus current liability. Ultimately, this is working capital margin also. Net working capital is working capital margin. What it mean by working capital margin? See, current asset we all know, आप लोग करंट रेशियो में भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी पढ़ लिए हैं. तो करंट एसेट का कोई कंपोनेंट है, अगर मान लो टोटल करंट एसेट 100 रुपीज है, लेट्स टेक इन दैट वे, टोटल करंट एसेट इज 100 रुपीज एंड टोटल करंट लायबिलिटी जो आपका है लेट्स 50 रुपीज है या 60 रुपीज है, थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं फिगर को. तो 100 रुपीज में 60 रुपीज आपका करंट लायबिलिटी है. क्लियर? तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कितना हो गया? 40 रुपीज. अब क्वेश्चन मेरा ये 40 रुपीज आया कहां से? करंट लायबिलिटी तो हो चुका है, इसका मतलब ये 40 रुपीज जो है ये लॉन्ग टर्म फंड से आया होगा. दैट इज द वर्किंग कैपिटल मार्जिन. ये 40 आया कहां से? आपने तो पूरा करंट लायबिलिटी यूज कर लिया. करंट लायबिलिटी के नाम पे दो ही लायबिलिटी है ना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी. लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आप डेट लायबिलिटी हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, रिजर्व्स हो सकता है, यही सब है ना लॉन्ग टर्म में. और करंट लायबिलिटी है, आपने करंट लायबिलिटी माइनस कर दी. आप कई इनकम स्टेटमेंट देखेंगे एंड बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट में आपको क्लियर कट लिखा रहता है नेट करंट एसेट. What is net current asset? Net current asset is current asset minus current liability. That is actually net working capital. और वो फंडिंग कहां से हो रही है? लॉन्ग टर्म फंडिंग. अब यहां पे फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, फूड फॉर थॉट, और वो ये है कि कहां तक बुद्धिमानी है कि आपका लॉन्ग टर्म फंड करंट एसेट में फंसा हुआ है. क्या आप लोग पसंद करेंगे कि आपका जो बैंक से बोरो करें या जो पूंजी कहीं का है वो आपके खाने पीने में किचन में लगे? कैपिटल फॉर्मेशन तो समझ में आता है, राइट? कैपिटल फॉर्मेशन कुड बी देयर, बट इट कांट बी पॉसिबल दैट इट्स अ शॉर्ट टर्म में आप करंट एसेट में आपका लॉन्ग टर्म फंड लगा रहे हैं. जिस पैसे से कार खरीदना था उस पैसे को अगर पेट्रोल खरीदने में आप लगाने लगे तो इसका मतलब फाइनेंशियल पोजीशंस आर नॉट गुड. तो अगर करंट एसेट में ज्यादा फंड लॉक्ड है, उस एंगल से भी देखिए, करंट एसेट में ज्यादा फंड लॉक्ड है, इसका मतलब इट इज नॉट गुड. अगर 100 रुपीज का करंट एसेट है और ओनली 60 रुपीज का आपका करंट लायबिलिटी है, तो आप नहीं चाहोगे करंट एसेट भी 100 रुपीज का हो जाए, 60 रुपीज का हो जाए. और 60 रुपीज का करंट एसेट भी जब होगा, ये तभी संभव है 60 रुपीज का करंट एसेट जब करंट एसेट का कंपोनेंट घटाओगे. और करंट एसेट में क्या होगा? वहां भी इन्वेंट्री होगा, तो इन्वेंट्री फिर रिड्यूस करो, वहां भी रिसीवेबल होगा, रिड्यूस करो. तो उस एंगल से भी तो यही कहा जा रहा है. और जब आप रिड्यूस करोगे करंट एसेट को तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा? लेस देन 2, धीरे धीरे 1, लेस देन 1 भी हो सकता है. और यही हम लोगों ने रेशियो के वक्त भी पढ़ा था. तो किसी भी एंगल से देखिए, आपके लिए यह सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ मच कैश इज गोइंग टू बी यूज्ड, वेयर इट इज गोइंग टू बी यूज्ड, एंड how much inventory you are holding, how much receivable fund locked in is there. All these questions are going to be there. Any question? आप लोग आज कुछ बोलने के मूड में नहीं है. Gross working capital is total of current asset. Total of current asset is called gross working capital. Right?
आप लोगों के पास SLM है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का बुक निकाल के देख लीजिए आप लोग, उसमें चैप्टर देखिए और कोई भी क्वेश्चन है उससे पूछिए। ऐसे मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट पे काफ़ी प्रोजेक्टर के थ्रू क्वेश्चन करवाना चाह रहा था, लेकिन आज इसको ड्रॉप कर रहा है। PPT कहाँ बनाते हैं यार, इतना PPT बनाने लगे तो हो गया है नहीं। वर्किंग कैपिटल जब हम बात करते हैं तो प्रायः नेट वर्किंग कैपिटल ही बोलते हैं। तो क्या होता है कि कोई डिफरेंस हम नहीं मानेंगे, लेकिन कोई अगर डेलिबरेटली कुछ पूछना चाहेगा तो आप कह सकते हो भाई आप ग्रॉस की बात कर रहे हो, नेट की बात कर रहे हो। वर्किंग कैपिटल तो एक जेनरिक वर्ड हो गया। तो अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है तो टोटल ऑफ करंट एसेट हो गया, नेट वर्किंग कैपिटल है तो उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, राइट। वो अगर जहाँ पे है वहाँ पर, जैसे साइट वगैरह पे होता है सर्टिफाइड वर्क का, उसका कारण है वो एक अकाउंटिंग एंगल से है, यहाँ पे हमारा एंगल नहीं है। अकाउंटिंग एंगल से क्या है, सिर्फ आपने क्वेश्चन रेज किया इसलिए समझा देते हैं। उसमें क्या होता है कि वैसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या वैसा प्रोडक्ट प्रोडक्शन जिसमें काफ़ी लंबा पीरियड लगता है। जैसे हम कभी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो 100% रेडी रहता है वो, और रेडी टू यूज़ होता है, तो उसका पूरा प्राइस हमें मालूम होता है। लेकिन अगर मैं आपका कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, प्लीज़, अगर आपका कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, और प्रोडक्ट बनाने में मुझे 5 साल लगेगा, अब 5 साल के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो आपको सेल करूँगा, तो क्या मैं 5 साल तक इंतज़ार करूँ, आप मुझे कोई रेवेन्यू नहीं देंगे, 5 साल तक मैं खाऊंगा कैसे, रहूँगा कैसे? और ये सब जितने भी इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, उस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऑर्डर पे बनता है, राइट। ऑर्डर पे आपने मुझे ऑर्डर दे दिया, अब आपने मुझे ऑर्डर दे दिया मेरी एक कोठी बना दो, 3 साल लगेगा बनने में, लेकिन मैं टाइम टू टाइम तो पैसा आपसे मांगूंगा, आप मेरे कस्टमर हैं तो आपसे पैसा लेता रहूंगा, लेकिन आपको रेडी टू शिफ्ट नहीं दे रहा हूं। तो क्या होगा कि वर्क सर्टिफाइड होता है और उसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है अकाउंट में। अगर 10% तक वर्क सर्टिफाइड है तो कोई पेमेंट नहीं होगा, 25% तक होता है तब हम पेमेंट करना शुरू करते हैं। तो अब कोई मान लीजिए इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अगर देखें इसको, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जरूरत होगी, लेट्स हमारा वर्क सर्टिफाइड 50% हो गया, एक काम है 50% वर्क सर्टिफाइड हो गया। अब 50% वर्क सर्टिफाइड होने का मतलब मुझे जितना काम करना था 50% काम कर चुके हैं, आधा काम हो चुका है मेरा, तो आधा मटेरियल मेरा खर्च हो जाना चाहिए। अगर 100 बैग सीमेंट है तो उसमें 50 बैग सीमेंट खर्च होना चाहिए, मेरा 60 बैग सीमेंट खर्च हो गया है, 10 बैग एक्स्ट्रा खर्च हो गया है। तब क्वेश्चन उठता है कि क्या जो वर्क जिसमें सर्टिफाइड हुआ था और हम आज जो स्टॉक देख रहे हैं इसके बीच में भी मैंने कोई काम किया है, दैट इज वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड। मेरा सारा कैलकुलेशन प्रॉफिट के पर्पज से यहां होगा। याद रखिएगा जब 50% वर्क कंप्लीट होता है उसमें जो रिवेन्यू काउंट होता है 1/3 ऑफ द प्रॉफिट गोज, और अगर 75% होता है उससे ऊपर होता है तो 2/3 ऑफ प्रॉफिट गोज, और उसके बाद कंप्लीट वर्क सर्टिफिकेशन में कंप्लीट ट्रांसफर होता है, साइट अकाउंट क्लोज हो जाता है। क्लियर? किसी भी साइट के लिए यूज कर सकते हैं। बड़ा सिप तैयार कर रहे हैं, आपने मुझे सिप बनाने का ऑर्डर दे दिया, अब सिप तो आपको मैं 6 महीने में बना के तो दे नहीं सकता, हाँ? और टाइटेनिक टाइप का अगर सिप बनाना हो तब तो मुझे 10 साल चाहिए, तभी तो वो बन पाएगा। लेकिन जब मैं बनाऊंगा, मैं सिप मेकर हूं, मैं वरुण सिप टाइप से या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टाइप से अगर कंपनी हूं, तो मुझे तो रेवेन्यू बराबर चाहिए आपसे, ठीक है। तो मैं वर्क सर्टिफाइड होगा, दिखा दूंगा, देखो ये सरफेस तैयार हो गया है, जैसे कंस्ट्रक्शन में होता है, प्लिंथ तैयार हो गया, पैसा दीजिए, लेंटर पे पहुंच गया, पैसा दीजिए। ऐसे करके वर्क के डिफिनीशंस होते हैं। इन्वेंट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई क्वेश्चन? दिल खोल के क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस गर्मी में क्वेश्चन पूछ के गर्मी को परेशान कर दीजिए। नो क्वेश्चन, बंद कर दीजिएगा। हाँ,